السلام علیکم. ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں مکہ کی ساری زیارتیں کریں گے اور مسجد زورانہ جانے والے ہیں. یہ ہمارا بس ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ہم لوگ کا 3 عمرہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ایک عمرہ کرنے چوتھے کے لیے جا رہے ہیں. مسجد زورانہ سے چوتھا عمرہ ہوگا. مولانا صاحب کا دیکھا نہیں, سب بیٹھ گئے تھے, کیا حال چال ہے؟ مولانا صاحب کا بھی دیکھا السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحبان, الحمدللہ آج کا ہمارا سفر مقدس, نیک اور پاک مقامات کی زیارت کا سفر ہے. تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوتے تو سفر کی دعا پڑھتے تاکہ سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے, اس میں جو مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, وہ دور ہو جائیں, وہ حل ہو جائے. تو آپ سبھی لوگ میرے ساتھ مل کے سفر کی دعا پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ زی سبحان اللہ جی سخر لنا سخر لنا ھذا ھذا وما كنا وما كنا له مقرنین له مقرنین وإنا وإنا إلى ربنا إلى ربنا لمنقلبون. اللہ اکبر. بلند آواز سے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, 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 الحمدللہ. الحمدللہ. حاجی صاحبان, سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس اللہ پاک نے آپ کو اپنے گھر کا مہمان بنایا. سبحان اللہ. کیونکہ یہاں پر انسان دولت, پیسہ, حسن و جمال اور طاقت کے ساتھ نہیں آتا. یہاں پر صرف وہی آتا ہے جسے بلایا جاتا ہے, جس پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے, جسے اللہ اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے. حاجی صاحبان, آپ میرے ان ہوٹلوں والوں کے, اس سعودی گورنمنٹ کے مہمان نہیں ہیں, آپ اللہ کے خالص مہمان ہیں. اللہ نے آپ کو اپنی گھر کی زیارت کا موقع دیا ہے, آپ نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا. سبحان اللہ. حاجی صاحبان, یہاں پر حرم ہے. حرم حرمت والی جگہ کو کہتے ہیں. یہاں کے درختوں کو جان بوجھ کر کاٹا نہیں جاتا, پرندوں کا شکار نہیں کیا جاتا, جانوروں کو ڈرایا نہیں جاتا. اس سرزمین پر تو اونچا بولنا بھی منع کیا گیا ہے. 10 دن کے لیے یہاں پر آپ لوگ آئے ہیں, بڑا احتیاط کے ساتھ آپ لوگوں نے چلنا ہے. ایسا مان, یہ مکہ کی سرزمین ہے. آپ پوری دنیا میں کہیں پہ چلے جائیں, آپ کا ایک عمل کے برابر ہے. مکہ کی سرزمین پر آپ لوگ ایک نیکی کریں گے 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے. سبحان اللہ. جب اللہ نے آپ کو اپنے گھر کا مہمان بنایا تو اپنے بندوں کے لیے کچھ خاص انعام رکھ دیے. وہ انعام جو پوری دنیا میں سے کہیں سے نہیں ملتے, صرف اس مکہ کی سرزمین سے ملتے ہیں. توجہ میری طرف. سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ نماز کا انعام ہے. پوری دنیا میں ایک نماز کے برابر ہے. مکہ کی سرزمین پر آپ کی ایک نماز 1 لاکھ نماز. سبحان اللہ. بھائی صاحبان, ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے تھے, ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے. مکہ کی سرزمین پر پھر ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے. آپ کا 1 لاکھ درخت جنت میں لگا دیا جائے گا. بھائی صاحبان, آج آپ لوگوں نے راستوں کو نہیں دیکھنا, ان بلڈنگوں کو نہیں دیکھنا. یہ راستے, یہ بلڈنگیں, یہ صرف آپ کے لیے بنائی گئی ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ سب سے گزارش ہے, ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی پیارے نبی کا نام آئے سبھی لوگ مل کے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے مان, آج ہم لوگ کہیں پکنک منانے نہیں جا رہے, کسی سیر و تفریح پہ نہیں جا رہے. آج ہم لوگ مقدس مقامات پر جا رہے ہیں, مقدس راستے ہیں. آپ لوگوں نے ان کا احترام کرنا ہے. آج انشاءاللہ 17 سے 18 مقامات آپ کو دکھائیں گے. آج ان راستوں پر چلے گے جن راستوں پر اللہ کے نبی چلے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے, حضرت آدم علیہ السلام, اما حوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام. مقدس راستے ہیں. عائشہ مان, یہ مکہ کی سرزمین ہے. یہاں پر آج کی جو سب سے پہلی زیارت ہے, اس کا نام ہے جبل سور. جبل سور, جبل عربی میں پہاڑ.
اور سور یہ پہاڑ ایک بیل کی طرح دکھائی. بھائی صاحبان اگر آپ اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ پر دیکھیں تو آپ کو ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ نظر آ رہے ہیں سبھی کو. آج ہم ان پہاڑوں کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کیونکہ ان پہاڑوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. جس پہاڑ پر آج ہم لوگ جا رہے ہیں یہ مکہ کا سب سے مقدس پہاڑ ہے. کیوں مقدس ہے؟ اس پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس کا نام ہے غار سور. جس غار کے اندر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن 3 راتیں قیام فرمایا. قیام کیوں فرمایا؟ اللہ کی طرف سے حکم آیا آپ اس مکہ کے اندر اسلام کی دعوت دیں, نبوت کا اعلان کریں. تو جب اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی, یہی جو مکہ کے لوگ تھے, یہی جو مکہ کے سردار تھے, سردار ابو جہل, ابو لہب, عمر بن حشام, عتبہ شہبہ, انہوں نے بجائے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے کسی نے مشورہ دیا اللہ کے نبی کو مکہ سے نکال دیتے ہیں, کسی نے مشورہ دیا اللہ کے نبی کو قید کر لیتے ہیں, اور کسی نے مشورہ دیا اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں, شہید کر دیتے ہیں. استغفر اللہ. بھائی صاحبان یہ قتل کرنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ مکہ کا بہت بڑا سردار ابو جہل, عمر بن حشام اس کا نام ہے. اسلام نے اسے جہل کا لقب دیا. اس جہل نے زمین پہ فیصلہ کیا کہ مکہ کے ہر گھر میں سے ایک ایک فرد کو لیتے ہیں, اس کے ہاتھ میں تلوار دیتے ہیں, اور جیسے ہی اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلیں گے تو نعوذ باللہ انہیں قتل کر دیا جائے گا, انہیں شہید کر دیا جائے گا. عائشہ بان اس جہل نے زمین پہ فیصلہ کیا, میرے اللہ نے آسمان پہ فیصلہ کیا. ذرا سبحان اللہ. آسمان پہ کیا فیصلہ ہوا؟ آپ اس مکہ کی سرزمین کو چھوڑ دیں, مدینہ کی طرف ہجرت کریں. جب اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا, اللہ کے نبی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, بھائی صاحبان ان کے لیے عمل بڑا مشکل ہوتا ہے. کیوں مشکل ہوتا ہے؟ کیونکہ بھائی صاحبان جس جگہ پر انسان پیدا ہوتا ہے, بچپن, جوانی, بڑھاپا گزر جاتا ہے, پھر وہ جگہ جہاں پر ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہو. اللہ کے نبی کا گھر بالکل بیت اللہ شریف کے سامنے تھا. جب آپ لوگ صفا مروہ کر کے نکلتے ہیں, آج آپ لوگوں نے جا کے دیکھنا ہے الٹے ہاتھ پہ گھر بنا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے مکہ المکرمہ. دیکھا ہے کسی نے؟ وہاں پر اللہ کے نبی کا گھر مبارک تھا. اب وہاں پر لائبریری بنا دی گئی ہے. آئے صاحبان آپ لوگوں سے ایک سوال ہے, 50 لوگوں سے ایک سوال کرنا ہے. آپ بتائیں آپ کو اس مکہ کی سرزمین پر آئے 2 دن ہوئے کہ 3 دن؟ 3 دن ہو گئے. چلیں جتنے دن بھی ہو گئے, کتنی رونقیں لگی ہوئی, دل لگا ہوا ہے. حرم چلے جاتے ہیں, طواف و زیارت کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتے ہیں. کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. آپ بتا دیں آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اس سرزمین؟ دل لگا ہوا ہے, کسی کا دل نہیں چاہتا چھوڑ. 6 سال ہو گئے ہیں بھائی صاحب, ہم اپنے ملک میں جا کے بور ہو جاتے ہیں. یہاں پر نہ دن کا بدل کرتے ہیں نہ رات کا بدل. یہ ایسی سرزمین ہے. کوئی چھوڑنا چاہتا ہے؟ کسی کا دل نہیں چاہتا. اللہ کے نبی کا دل بھی نہیں چاہتا تھا, لیکن اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا اس سرزمین کو چھوڑ دیں, مکہ کی سرزمین کو چھوڑ دیں. جب اپنے گھر سے جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں, اے علی آج رات تو نے میرے بستر پر سونا ہے, اور صبح اٹھ کر پہلے ان مکہ والوں کی عمارتوں کو واپس کرنا ہے, پھر مدینہ کی طرف آنا ہے. جب اپنے گھر سے نکلے سب سے پہلے اپنے یار سیدنا ابوبکر صدیق کے دروازے پہ جا کے دستک دی اور فرمایا کہ اے ابوبکر اب اس مکہ کو چھوڑنا پڑے گا. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہاں پر میرا گھر ہے, میرا مال و دولت ہے, بیوی بچے ہیں, میں اس سرزمین کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. جب آپ لوگ حرم کے قریب پہنچتے ہیں, آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے کہ کلاک ٹاور کے ساتھ لیفٹ سائڈ پر ایک بلڈنگ ہے, اس کے نیچے الراجی بینک کی مشین لگی ہوئی, ATM کی مشین لگی ہوئی ہے, اس کا نام ہے ہلٹن ٹاور. ایک گول بلڈنگ ہے ہلٹن ٹاور جہاں پر ہے, یہاں پر پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا. اب اسی ہلٹن ٹاور کے 4تھے فلور پر ان کے نام کی مسجد بنی. عائشہ بان جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے تو سب سے پہلے اس پہاڑ سے سب سے پہلے اس پہاڑ کے نیچے پہنچے. اس پہاڑ کے نیچے آج ہم لوگ پہنچ گئے. آج آپ لوگ ذرا ایک بات نوٹ کریں, پھر توجہ میری طرف کر لیں. آج ہم لوگ ایک لگژری بس کے اندر آئے ہیں, ایئر کنڈیشن بس ہے, AC چل رہا ہے, بڑے سکون کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہیں. سردی لگ رہی ہے مجھے پتہ ہے, لیکن حاجی صاحبان ہمیں اندازہ ہے کہ اللہ کے نبی جب اس پہاڑ کے نیچے پہنچے ان کے پاؤں برف زخمی ہو چکے. آج ہم لوگ صحیح سلامت پہنچ گئے. زیارات پہ آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ گاڑی سے اترے, تصویریں, کھانا پینا کھا لیا, ایک سائڈ سے سونا دوسری سائڈ سے نکال دیا, یہ نہیں ہے مقصد زیارات پہ آنے کا. زیارات پہ آنے کا مقصد اپنے ایمان کو تازہ کرنا, اپنی روح کو وہ تکلیف محسوس کروانا
जो तकलीफ अल्लाह के नबी ने उस वक्त बर्दाश्त की, हम महसूस भी नहीं कर सकते। सबसे पहले ज़ियारत आ चुकी है, दो बातें तवज्जो से सुन लें, ये आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। आज हम लोग इस पहाड़ के ऊपर जो गार है, उस गार को नहीं देखने जा रहे। बहन भाइयों सुनो जरा, क्योंकि अगर आप में से किसी बहन भाई ने पहाड़ के ऊपर जो गार है, उस गार को देखने, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें, टैक्सी पकड़ें, टैक्सी वाला आपको उस रास्ते पर उतारेगा जो रास्ता पहाड़ के ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमें गवर्नमेंट ने एक छोटा सा प्लाट दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पर खड़े होंगे, 10 मिनट का बयान होगा, दुआ होगी, दुआ के बाद सभी हाजी अपनी अपनी सीट पर आके बैठ जाएंगे। कोई बता भी सीट ना चेंज करे। हमारी गाड़ी का जो बॉडी नंबर है वो 232 है। इस कंपनी की तकरीबन 100-150 गाड़ी रोजाना ज़ियारत पे आती है। जो गाड़ी जब भी आप लोग नीचे उतरें, गाड़ी का जो नंबर प्लेट है एक दफ़ा उसकी फ़ोटो ले लें ताकि आपको गाड़ी का पता चलता रहे। हम सभी इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे वापस आएंगे, कोई बंदा भी इधर उधर नहीं जाएगा। अपने एहराम गाड़ी में पड़े रहने दें, सभी लोग मेरे साथ उतर के नीचे आ जाए। जज़ाकल्लाह खैर। जबल सौर, आज हम जिस पहाड़ के नीचे खड़े हैं, आज से जो 20-30 साल पहले लोग आए, वो बताते हैं कि ये भी जबल सौर पहाड़ का हिस्सा ही था। अभी ये पहाड़ काट के रास्ते और बिल्डिंग वगैरह बना दी गई हैं। हाजी साहबान, मैंने आपको गाड़ी के अंदर भी बताया कि आज हम लोग एक बस के अंदर आए, एयर कंडीशन बस थी। जबल सौर की तरफ आते वक्त किसी को कोई दुख, कोई तकलीफ पेश नहीं आया। सभी लोग बड़े सुकून के साथ बैठे, बड़े इत्मीनान के साथ बैठे और इस पहाड़ के नीचे पहुँच गए। लेकिन जब अल्लाह के नबी इस पहाड़ के नीचे पहुँचे तो उनके पाँव मुबारक जो थे वो ज़ख्मी हो चुके थे। इस सफ़र में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके साथ थे। जब उन्होंने अल्लाह के नबी को ज़ख्मी हालत में देखा, अपने कंधों में बिठाया और आप सबके सामने जो पहाड़ है, नीचे आए बिछाने इस पहाड़ को जरा सभी गौर से देखें। जबल अरबी में पहाड़ को कहते हैं और सौर ये एक बैल की तरह दिखता है। इसको ज़रा गौर से देखें, ये एक बैल की तरह नज़र आता है। अब सभी बहन भाइयों ने इस पहाड़ के सबसे ऊपर देखना है। इस पहाड़ के सबसे ऊपर दो बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं सभी को। पहाड़ के टॉप पर दो बड़े पत्थर हैं, उनके हाथ में छोटा पत्थर है, उसी के हाथ में छोटा पत्थर है। उन पत्थरों के पीछे एक छोटा सा रास्ता है, एक छोटी सी गार है जिसका नाम है गार सौर। इस पहाड़ का नाम है जबल सौर और इसके ऊपर जो गार है उसका नाम है गार सौर। ये गार समंदर से 5,000 ऊपर लेके गए। इसी सफ़र के दौरान अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यारे गाल ये आप छोटी छोटी बातें याद रखें, फिर ये आपको पूरा वाक़या आसानी के साथ समझ आ जाएगा। इसी दौरान यारे गार का लक़ब मिला। ऐसा बात अस्मा बिन्त सदीक़, ये अबू बकर सिद्दीक़ की साहबजादी थी, एक 8-9 साल की बच्ची थी। ये रोज़ाना मक्का से पैदल चलती, इन पथरीले पहाड़ों के ज़रिए चल के आती और इस गार के अंदर खाना लेके आ जाती। ऐसा बात आप ज़रा अंदाज़ा करें कि आज हम अपनी एक 8-9 साल की जो बच्ची है उसको घर के दरवाजे तक नहीं जाने देते, लेकिन वो साहबजादी किसकी थी? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की साहबजादी। सुभान अल्लाह। रोज़ाना मक्का से पैदल चलती, इन पथरीले पहाड़ों के ज़रिए चल के आती, कफ़ारे मक्का से बचती में जाती, रोज़ाना इस गार में खाना लेके आती। ऐसा मान इस गार के अंदर 1-2 बंदे का बैठना खड़ा होना मुश्किल है। यहाँ पर अल्लाह के नबी ने 3 दिन 3 रातें क़याम करके ये सारी दुख, ये सारी तकलीफ अल्लाह के नबी ने किन की खातर बर्दाश्त की? हम सब की खातर बर्दाश्त की, अपनी उम्मत की खातर बर्दाश्त की। आज हम लोगों से यहाँ पर 5 मिनट खड़े हुआ नहीं जा रहा, ये गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन प्यारे नबी ने यहाँ पर 3 दिन 3 रातें क़याम करवाया। अब्दुल्ला बिन सदीक़, ये अबू बकर सिद्दीक़ के साहबजादे थे, ये सारा दिन तुम्हारी मक्का के मामले वाले वो तो बातचीत करते, रात की तारीफ़ी में आके अल्लाह के नबी को यहाँ पर बताया करते। बस एक आखिरी बात करूँगा, फिर दुआ होगी। दुआ के बाद हम गाड़ी की तरफ चलेंगे, तस्वीरें वगैरह बना लें, दाना डाल लें, फिर गाड़ी की तरफ चलेंगे। ऐसा बात आखिरी बात ये है कि आप सबसे गुजारिश है कि आप लोगों ने इन मुकामात का दिली तौर पर एहतराम करना है, मेरे सामने मत करें। आप जहन में ज़रा ख्याल लेके आएँ कि आज हम जिस रास्ते से चल के आए हैं, जिस रास्ते पर खड़े हैं, क्या पता अल्लाह के नबी इस रास्ते पर चले हों, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला इस रास्ते पर चले हों, तो हज सामान
आप लोगों ने इनका दिली तौर पर एहतराम करना है, मेरे सामने मत करें, भाई को दिखाने की खातिर मत करें, दिली तौर पर एहतराम करना है। ये मैं बार कहता रहूँगा। अभी हम लोग मिलकर दुआ करते हैं, फिर हम लोग गाड़ी की तरफ चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी गारे शोर का बड़ा वाक़या पड़ा हुआ है, आगे हमने मैदान अरफात को जाना है, हमारा आधा घंटा लग जाएगा, तो बाकी वाक़या मैं आपको गारे शोर को बता दूँगा। ये दुआ करा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाह पाक मेरा करोड़ हाथ करोड़ शुक्र कि इन मकामात पे आने की तेरे सआदत है। अल्लाह तेरे महबूब के यारगार ने तेरे महबूब के लिए जो कुर्बानी दी है, अल्लाह ऐ करीम हमें भी ऐसी कुर्बानी तेरे महबूब और तेरे दीन के खातिर देने की तौफीक आमीन। जैसे तेरे महबूब के यारगार ने अपने जान की बाजी लगा दी, सांप से डसवा लिया, तेरे महबूब को चोट आने ना दिया। अल्लाह हमें भी तेरे महबूब की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। आमीन। तेरे महबूब से सच्ची अकीदत नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह तेरे महबूब की सुन्नतों को अपनाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह करीम यहाँ उन्होंने कुर्बानी देकर अपना ठिकाना तेरे महबूब की कुर्बत हासिल कर लिया है। अल्लाह इन लोगों से हम भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह तेरे महबूब के यारगार से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बत के सदक़े अल्लाह हमें भी तेरे महबूब की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। आमीन। अपने और अपने रसूल के घर का बार बार मेहमान बनाए। ऐसा बात जब अल्लाह के नबी इस पहाड़ के नीचे पहुंचे, उनके पांव मुबारक जख्मी हो गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी को जख्मी हालत में देखा, अपने कंधों में उठाया और इस पहाड़ के ऊपर लेके गए। इस पहाड़ को सभी ने गौर से देखा, इस पहाड़ के ऊपर दो बड़े पत्थर भी सभी ने गौर से देखे। अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के नबी को इन पत्थरों के बाहर बिठा दिया, खुद इस गार के अंदर दाखिल हुए। एक ही रिवायत में मिलता है कि अपना इमामा शरीफ उतारा, उसे फाड़ कर गार की सफाई की, जितने सुराग इस गार के अंदर बाकी रह गए उनके आगे कपड़ा लगा दिया। हदीस में आता है तकरीबन 76 सुराग थे इस गार के अंदर। तो जब अल्लाह के नबी को इस गार के अंदर लेके जाते हैं, प्यारे नबी फरमाते हैं सिद्दीक मैं थक चुका हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। तो अबू बकर सिद्दीक क्या करते हैं, अल्लाह के नबी को अपनी गोद में लेटा। इस गाड़ी के अंदर मेरी माएँ और बहनें बैठी हैं, इनकी भी गोदें हैं, इनकी गोदों में बच्चे लेटते हैं। लेकिन जरा तवज्जो से सुन लेना है साहबान, वो कितनी खुशनसीब गोद होगी जिस गोद में अल्लाह के नबी ने अपना सर रखा। सुभान अल्लाह। की कोई कीमत नहीं थी, कीमती गोद थी, जैसे सर रखते सो जाते। इस गार के अंदर एक ऐसा सुराग बाकी रह जाता है जिसके आगे कपड़ा नहीं रखा होता। तो उस सुराग के आगे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने पांव की एड़ी रख लेते। कुछ ही देर के बाद उस एड़ी पर सांप डसना शुरू। ऐसे वन पहले तो शिद्दत की शिद्दत को बर्दाश्त करते, सोचते हैं कि मेरी गोद में अल्लाह के नबी लेटे हुए हैं, तशरीफ फरमा है, मैं जरा सा भी इधर उधर हुआ प्यारा नबी कहीं बेदार ना हो जाए, कहीं उनकी आंख ना खुल जाए। लेकिन हाजी साहबान आप 50 लोग बैठे हैं, हम सबको अंदाजा है कि जिस इंसान को सांप डस ले उस इंसान के जो हालात होते हैं हमें अंदाजा। पहले तो अबू बकर सिद्दीक इस दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जैसे दर्द की शिद्दत में इजाफा हुआ, अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू बहना शुरू हुए। ऐसा मान वो जो आंसू निकले वो कहाँ पर गिरे, अल्लाह के नबी के चेहरे मुबारक पर। मैं देख रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर हाजियों के आंसू गिर रहे हैं, ये भी कीमती आंसू हैं, ये रायगा नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन वो खुश नसीब आंसू हैं, उन आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी। वो आंसू अल्लाह के नबी के चेहरे पर। ऐसा मान जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एड़ी पर सांप डसा, अल्लाह के नबी ने अपना लुआब समझते धूप को बोलते हैं, ये सीधे हाथ में मस्जिद देखें, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल राजी। सऊदीया का सबसे मशहूर बैंक है अल राजी बैंक, उन्होंने ये मस्जिद बना दी अल राजी, मस्जिद अल राजी। ये हमारी ज़ियारत नहीं, मैंने वैसे ही आपको दिखाया। ऐसे वन जरा तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह के नबी ने अपना लुआब उनकी एड़ी पर लगाया, अल्लाह ने उनकी एड़ी से सारा जहर खत्म कर दिया। मदीना के अंदर एक कुआं था, उस कुएं का पानी कड़वा था, उस कुएं के अंदर
तलवार ने जहर फेंक दिया, उस कुएं का पानी जहरीला हो गया। अल्लाह के नबी ने अपना लुआब उस कुएं के अंदर फेंका, अल्लाह ने उस कुएं का पानी मीठा कर दिया, अल्लाह ने उसे आबे शिफा बना दिया, अल्लाह ने उसे बीरे शिफा बना दिया। मदीना जाने ना अभी इंशाल्लाह, वहाँ पर मदीना में वो कुआं मौजूद है। आयशा बान उधर मक्का के अंदर सुबह ही अबू जहल क्या देखता है कि अल्लाह के नबी के बिस्तर पर कौन तशरीफ फरमा है, मैं बता के हटाऊं आपसे सवाल है। कौन? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। बोलना नहीं है, याद रखना है। देख के परेशान हो जाता है, कहता है अली जल्दी से बता अल्लाह के नबी किधर है। हजरत अली आगे से क्या खूबसूरत जवाब देते हैं, फरमाते हैं ए अबू जहल, मैं जिंदगी में आज से पहले इतनी सुकून की नींद कभी नहीं सोया, क्योंकि बिस्तर किसका था? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर। और फरमाते हैं कि आज रात मुझे यकीन हो गया था कि आज रात मुझे मौत नहीं आएगी, क्योंकि प्यारे नबी ने जब ये फरमा दिया कि अली जब सुबह उठो पहले मक्का वालों के इमाम को उठो। ऐसा मान मौत पर हक है, मौत किसी वक्त किसी जगह पर भी आ सकती है। अल्लाह पाक ने इंसान की इस दुनिया के अंदर आने की तरतीब बनाई है, जाने की कोई तरतीब नहीं। आप में से किसी को पता है पहले किसने जाना, बाद में किसने जाना? तो कुरान में यही कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज ने मौत का मजा चखना है। अबू जहल उसी जगह पर खड़े होकर ऐलान कर देता है कि जो बंदा मुझे अल्लाह के नबी के बारे में बताएगा, मैं उसे 100 सुर्ख रंग के ऊंट, रेड कलर के ऊंट इनाम के तौर पर दूं, गिफ्ट दूं। भाई साहबान, ये जितने भी अरब मुबालक आप लोग देखते हैं, इनके अंदर जिसके पास सुर्ख रंग के ऊंट होते थे, इसके पास अब नहीं पहले उससे बड़ा अमीर इंसान होता है। तो जब उसने 100 सुर्ख ऊंट का ऐलान किया तो एक शख्स बताता है अल्लाह के नबी तो गारे सौर में क्या फरमा रहे। अबू जहल अपने साथियों को लेता है, हाथों में तलवारें दे देता है और गारे सौर की तरफ चल पड़ता है। एक बात याद रहे, अगर आपने इस वाक़े को समझना है फिर इस बात को याद रखना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी बिल्कुल सही सलामत मदीना पाक पहुंच चुके थे। ऐसा बात वो अबू जहल और उसके साथी मक्का से गारे सौर की तरफ चल पड़े। मैं अभी आपको बता के हटाऊं कि इस गार के अंदर कितने सुराख बाकी रह गए जिसके आगे कपड़ा नहीं रखा हुआ। एक सुराख बाकी रह गया था जिसके आगे कपड़ा नहीं रखा। उस सुराख के आगे अबू बकर सिद्दीक ने अपने पांव की एड़ी रखी, सांप ने डसा एड़ी वापस खींच ली, फिर से एक सुराख खाली रही। उधर से अबू जहल को खबर भी होगी कि अल्लाह के नबी तो यहाँ पर बैठे। ऐसे मान फिर अबू जहल और उसके साथियों का मुकाबला किसने किया? मैंने अभी आपको बताया अल्लाह के नबी तो सही सलामत पहुंच। किसने किया मुकाबला? किसी नबी ने नहीं किया, किसी सहाबी ने नहीं किया, बल्कि किसने किया? अल्लाह ने खुद। किस तरह किया? अल्लाह ने एक मकड़ी को हुक्म दिया, ऐ मकड़ी एक सुराख के आगे जाला बोल दो और मेरे नबी के आयशाबान। अबू जहल और उसके साथी जब गार के करीब पहुंचते हैं तो क्या सोच रहे हैं? अभी पता चल जाएगा कि आप कितनी तवज्जो से बात सुन रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। क्या सोच रहे हैं? किस गार को देखने के लिए, इस गार के अंदर जाने के लिए, इस गार के धाने पर एक सुराख है जिस पर मकड़ी ने जाला बुना हुआ है। लगता है यहाँ पर सदियों से कोई नहीं आया। अल्लाह के नबी किधर है? वो इसी गार के अंदर बैठे हुए। लेकिन अबू जहल को क्या लग रहा है कि इस गार के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने उनके अखलों पर पर्दा डाला। हाजी साहबान, अल्लाह अपने बंदे से बड़ा प्यार करता है। आप सबके सीधे हाथ में जो आपको घर नजर आ रहा है, ये बिल्कुल गाड़ी के साथ है जिसमें ये दरख्त लगे हुए हैं। इस वक्त के इमाम काबा कारी अब्दुर्रहमान अब्दुल अजीज सुदेस का घर, ये आप सबके सीधे जो हमारे इमाम काबा हैं, नाम तो बड़ा मशहूर है उनका, कारी अब्दुर्रहमान अब्दुल अजीज सुदेस। कारी सुदेस वैसे हम लोग उन्हें बोलते हैं, उनका पूरा नाम है कारी अब्दुर्रहमान अब्दुल अजीज सुदेस। ऐसे मान अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी मिल के पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बार बार ना कहना पड़े, हम लोग दो हैं, दो ज्यादा हैं। प्यारे नबी ने फरमाया है सिद्दीक तुम परेशान मत हो, हम दो नहीं हम तीन है, तीसरा अल्लाह भी हमारे साथ है। फिर उनके साथ कौन था? अल्लाह ही था। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि बारे मक्का हमारे इतने करीब थे कि उनके कदमों के चलने की आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही, लेकिन वो फिर भी नहीं पहचान पाए कि यहाँ पर हम क्याम कर रहे हैं
क्योंकि अल्लाह अपने बंदे से बड़ा प्यार करता है। अल्लाह ने कुरान के अंदर कसम खाई है, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। मुझे वत्तीन की कसम, मुझे जैतून की कसम, मुझे तूरी सीनीना की कसम, मुझे इस मक्का शहर की कसम। अल्लाह ने अपने घर की भी कसम क्या खाई? लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। मैंने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, फरिश्तों से भी अजीम बनाया। आज हम एक माँ का उसकी औलाद के साथ प्यार देखते हैं। इस गाड़ी के अंदर माँ बैठी है, आप इस बात को जरा महसूस करें। एक माँ का उसकी औलाद के साथ प्यार देखते हैं। वो माँ जो सारा दिन सारी रात सुबह शाम अपनी औलाद की खातिर जागती है, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। वो बाप जो अपनी जवानी को बच्चों के फ्यूचर की खातिर बर्बाद कर देता है। आज इस आवाज तवज्जो है ना सभी की मेरी तरफ। मेरा एक जुमला भी ज़ाया नहीं करना। मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे मैं तेरे से 70 माओ जितना प्यार करता हूँ। मेरा सुभान अल्लाह। एक माँ का उसके ये माएँ बैठी है, बता दें, एक माँ का उसकी औलाद के साथ जो प्यार है उसका कोई मुकाबला है? कोई शर्त है? कोई शर्त नहीं है। लेकिन अल्लाह अपने बंदे से 70 माह जितना प्यार करता है। मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे तू मेरी तरफ चल के आ, मैं तेरी तरफ दौड़ के आऊँ। भाई साहबान, आज अगर कोई दुख कोई तकलीफ आता है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया के अंदर एक ही तरह जिस तरह के आप लोग मेहमान बने, तो वास्ता किसका देना है? अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो भाई साहबान, बस गाड़ी सोन का वाक़या खत्म होने वाला है। अभी हमारी गाड़ी मैदान अरफात में दाखिल हो जाएगी और अब हम लोग हदूद हरम से बाहर भी जाने लगे। अभी सीधे हाथ पर एक साइन बोर्ड आने लगा है, कुछ ही देर के बाद नजर नहीं आता, ये पीछे गुजर गया। वो साइन बोर्ड आता है, यहाँ से हम लोग हदूद हरम से बाहर आ चुके हैं। भाई साहबान, आमर बिन फुहैरा मक्का पाक से 2 ऊँटनियाँ लेके आए। एक ऊँटनी पर अल्लाह के नबी सवार हुए, एक ऊँटनी पर अबू बकर सिद्दीक सवार हुए। अल्लाह के नबी ने यहाँ पर कितने दिन क़याम किया? 3 दिन 3 रातें क़याम करने के बाद मक्का से मदीना की तरफ सफर का आगाज कर दिया। आज इस बस में जाएंगे 5 घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे लग जाएंगे, 7 घंटे लग जाएंगे, जितने मर्जी घंटे लग जाएं। कार में जाएंगे 4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन हमें अंदाजा है अल्लाह के नबी कितने दिनों में मक्का से मदीना की तरफ पहुंचे? 21 दिनों के अंदर पहुंचे। पता नहीं रास्ते में पानी मिला, खाना मिला कि नहीं मिला। हमें अंदाजा है कि 21 दिन अल्लाह के नबी ने किस तरह गुजारा। किसी को कोई खबर है? हमें खबर हो भी नहीं सकती। ये सीधे हाथ में पहले देखना आप लोगों ने कि दुनिया की बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटियों में इसका शुमार होता है। इसका नाम है जामे उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी ऑफ सऊदी अरब। जामे उम्मुल कुरा, सीधे हाथ में यूनिवर्सिटी। हाजी साहबान, हमें महसूस नहीं होना, क्योंकि हम लोग जहाज में बैठे, एसी लगा हुआ, जिद्दा उतरे, आगे एसी वाली गाड़ी आ गई, बस ने आपको होटल पे उतार दिया, आगे एसी लगा हुआ था कमरे में, रूम में एसी चल रहा था। फिर गाड़ी में बैठे, क्लॉक टावर के नीचे उतरे, आगे एसी ही एसी चल रही है। अब ज़ियारत पे निकले हुए, एसी चल रहा है। ऐसा में हमें महसूस नहीं होना कि अल्लाह के नबी ने 21 दिन किस तरह गुजारे। सहराहों के जरिए चल के गए, पथरीले पहाड़ों के जरिए चल के गए। इन रास्तों पर चलना बड़ा मुश्किल। ऐसा ज़रात पे आने का मकसद अपने ईमान को ताज़ा करना है। ये वाक़यात आपने हज़ारों दफ़ा सुने हैं। मेरे जैसे मौलवी से आपने बहुत से वाक़यात सुने हुए हैं। गूगल यूट्यूब खोले, मुख्तलिफ उलमा किराम के वाक़यात आपके सामने आ जाएंगे। तो भाई साहबान, अल्लाह के नबी की ऊँटनी मदीना पाक में जहाँ पर जाकर रुकी, आज वहाँ पर मस्जिद बनी हुई है। अगर उस मस्जिद के अंदर आप लोग 2 नवाफिल पढ़ेंगे, अल्लाह आपको एक मकबूल उम्रे का सवाब देगा। वो उम्रा जो मेरे अल्लाह ने कबूल कर लिया, आज से 2 दिन पहले आप लोगों ने 2 उम्रे कर लिए, एक इंडिया से, एक मस्जिद आयशा से कर लिया। किसी को कोई खबर नहीं है कि आपको उम्रा कबूल हुआ भी है कि नहीं कबूल हुआ। किसी को पता है? किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा कौन उस मस्जिद में अगर आप लोग 2 नवाफिल पढ़ेंगे, अल्लाह आपको एक उम्रे का सवाब दे देगा। उस मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद कुबा। जाएंगे मदीना? और बोले भाई जाएंगे इंशाअल्लाह, सभी इंशाअल्लाह के हैं। मदीना जाना है। अल्लाह आपके मदीने के सफर को आसान फरमाया, आमीन आमीन। ऐसा बान अल्लाह उस उम्रे का सवाब देता जो अल्लाह ने उम्रा कबूल कर लिया। इससे बड़ी और बात है। ऐसा बान अभी हमारी गाड़ी जो है
ये मैदान अरफात की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे हशर का मैदान है। रोज़े क़यामत हम सब ने इसी मैदान के अंदर इकट्ठे होना है। नफ्सा नफसी का दौर होगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा, ये सभी रिश्ते खत्म हो जाएंगे। आज जिन रिश्तों पर आप बहुत मान करते हैं, फख्र करते हैं, अकड़ के चलते हैं, ये धोखा देने वाले रिश्ते, सीधे हाथ पर सामने की तरफ देखें सभी। ये जो लोग सो रहे हैं इनको जुर्माना हो जाएगा। सीधे हाथ पे देखें जरा सभी लोग, एक पीले रंग का बोर्ड लगा जहाँ पे लिखा अरफात स्टार्ट से बताए अरफात। ये मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूँ भाई साहबान, देखिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बंदा सुने 50 लोग सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपने रोजाना मक्का की ज़ियारत पे नहीं आना, आपको और बहुत से काम है। आज एक दफ़ा आए हैं, अच्छी तरह से ज़ियारत कर लो। अरफात स्टार्ट से देखा सभी ने, एक भी लिखा होता है अरफात एंड से नहाया अरफात, ये बताया अरफात, वो आगे नहाया अरफात, हदूद खत्म हो। ये साइन बोर्ड बड़ी हमारी मदद है। हज में 30-40 लाख हाजी होता है, मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हाजियों को, कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसे वन मैदान अरफात, आज आप लोगों ने जरा नीचे उतरना है। आज आपने इस मैदान के अंदर गर्मी की शिद्दत का अंदाजा लगाना है कि आज गर्मी की शिद्दत का आलम क्या है, रोज़े क़यामत क्या होगा। ज़मीन तांबे की हो जाएगी, सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, सूरज बिल्कुल इस ज़मीन के करीब आ जाएगा। अगर रोज़े क़यामत मेरे अल्लाह और उसके रसूल की रहमत का साया नसीब हुआ तो इंशाअल्लाह हमारी बख्शिश होगी। इसके अलावा हमारी बख्शिश नहीं होती, क्योंकि हमारे अमाल इस काबिल हैं। हम हाजी साहबान अपनी जरा आंखें बंद करें, एक दफ़ा अपनी पिछली ज़िंदगी को देख लें। हम लोग पीछे क्या करते हैं, हम गुनाहगार होते हैं, हम खताकार बंदे हैं। आप यकीन माने कि ये अल्लाह ने लाख लाख करम किया कि हमें अपने घर का मेहमान बनाया, अपने घर के साथ चक्कर निकालने का मौका दिया, सफा मरवा करने का मौका दिया। आज आप लोग अगर समझते ना कि मैं अपनी ताकत की नशे में हूँ, तो आपकी सरासर गलत फहमी है। हमने इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग देखे जो अपने हाथों में लाखों अरबों करोड़ों रुपये लिए, मक्का मदीना नहीं आ सकते, क्योंकि शायर कहता है जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम की बात है, ये बड़े नसीब के फैसले। कदरों वाले आते हैं, नसीबों वाले आते हैं, हर बंदा नहीं आ सकता, हर बंदे के पास की बात नहीं है। ये जो मैदान अरफात है, इसके अंदर हज का सबसे पहला रुकन अदा किया जाता है। हज का पहला रुकन है, जो बंदा 9 ज़िलहज को सुबह फजर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक अगर तो एहराम बांध कर मैदान अरफात की हदूद में आ गया, उसका हज हो गया। जो बंदा 10 लाख का पैकेज लेके आया, 5 लोग आए, 50 लाख लग गया, 50 लाख जेब में वैसे रख के लाया, 1 करोड़ लग गया। अगर वो 9 ज़िलहज का अरफात में नहीं पहुंचेगा, उसका हज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इतनी सख्ती, क्योंकि ये जो 9 ज़िलहज के दिन है, मैं एक जुमला आपके हवाले करने लगा हूँ, आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी सुन लें। मेरा अल्लाह फरमाता है 9 ज़िलहज की फजीलत सुन लें। ये जो 9 ज़िलहज का दिन है, इसकी फजीलत सुन लें। मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, अगर तेरे गुनाह रेत के ज़रों जितने, समंदर के पानी जितने और आसमान के ऊपर जितने तारे सितारे हैं, जिन गुनाहों का कोई हिसाब नहीं है, ऐ मेरे बंदे, अगर तेरे गुनाह इतने भी हैं, ये सभी गुनाह 9 ज़िलहज का अरफात में लेके आ, मैं तेरे सभी गुनाहों को माफ कर दूंगा। ऐसा मान, हम समंदर के एक किनारे पे खड़े हो जाए, दूसरा किनारा नजर आता है किसी? रेत के जरे अभी मुट्ठी में उठा लेना, सारी जिंदगी लग जाएगी, नहीं गिन पाएंगे। अल्लाह फरमाता है इतने भी गुनाह होंगे, 9 ज़िलहज का अरफात में आ जाओगे, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को इसी साल 9 ज़िलहज का अरफात करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। मैंने कह दिया, आपने नहीं कहना, आपकी मर्जी है। मैदान अरफात में हमारी 2 ज़ियारत हैं। सबसे पहले है मस्जिद नमरा, इस मस्जिद में हज का खुतबा होता है, ये पहली ज़ियारत होगी। ये मस्जिद पूरा साल बंद रखी जाती है, साल में सिर्फ एक दफ़ा हज पे खोली जाती है, एक दिन के लिए खोली जाती है। वो दिन कौन सा है? वो 9 ज़िलहज का दिन है। इस मस्जिद में पूरे साल में एक अजान होती है, 2 तकबीरात होती हैं, ज़ोहर और असर कसर करके अदा की जाती है। इस मस्जिद के 3 गुंबद, सही है, ऐसे जागेंगे, 3 गुंबद, 6 मीनार, 64 दरवाजे, 64 और तकरीबन 3.5 लाख हाजियों के बैठने की जगह। 3.5 लाख हाजी एक वक्त में यहाँ पर बैठ सकते। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रुक रहे हैं यहाँ पर। भाई साहबान, मैंने हज को अपनी आंखों के सामने देखा है। जब बंदा 10 लाख का पैकेज लेके आया, वो मस्जिद इमरा में बैठना तो दूर की बात, मस्जिद इमरा देख भी नहीं पाता। 30-40 लाख हाजी होता है। जिस जगह पर आज हम लोग खड़े होंगे, यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग यहाँ पर रुक रहे हैं। अगर आप में से किसी का वजू है तो दो नफल शुक्राने के अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है हम लोग यहाँ पर रुक रहे हैं। अगर किसी का नहीं है यहाँ पर, वो नफल पढ़ना कोई लाजमी नहीं है, शर्त नहीं है, क्योंकि ये मस्जिद तो बंद है। इस मस्जिद के बाहर छोटा सा सेन बना हुआ है, वहाँ पर नफल पढ़ लें। अगर किसी का नहीं है तो यहाँ पर खड़े होकर दुआ करें कि अल्लाह आज मैं इस मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ, खड़ी हूँ, अल्लाह पाक मुझे इसी साल हज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, मैं इस मस्जिद के अंदर बैठ कर खुश हूँ। आज की आखिरी बात, यहाँ की आखिरी बात यह है कि आप लोग जिस दरवाजे पर जाएंगे उसी दरवाजे से वापस आए। इसके जो 64 दरवाजे 64 डोर्स हैं वो सारे एक जैसे डिज़ाइन किए गए, एक जैसे। ये बात मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि हाजियों के एक दरवाजे पर उतारते हैं वो माशाल्लाह 6वें 7वें दरवाजे पे चले जाते हैं। आपने नहीं जाना, अपने ज़रा टाइम को खास ख्याल रखें। पहले हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, तो गेट नंबर 1 पे हमारी गाड़ी रुक रही है। गेट नंबर 1 पे आयशाबान, गेट नंबर 2 पे हमारी गाड़ी रुक रही है। 10 मिनट का यहाँ पर टाइम है। जो बंदा नफल पढ़ ले, दुआ कर ले, वापस गाड़ी में, ताकि हमें पता चले कितने लोग बाहर। अम्मा हवा को जन्नत में पैदा किया गया, उतारा कहाँ पे गया? आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका की सरजमीन पे उतारा गया और अम्मा हवा को जद्दा की सरजमीन पे उतारा गया। वो दोनों तकरीबन 40 साल तक अपने अल्लाह से तौबा करते रहे, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे, तो बुलाकर अल्लाह पाक ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया और इस जबल रहमत पहाड़ पे मिला दिया। ये रहमतों वाला पहाड़ है, ये बरकतों वाला पहाड़ है। अल्लाह इस पहाड़ के सदके आप सब पर अपनी खास रहमत फरमाए, आमीन। आयशाबान, इसी पहाड़ के नीचे अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी की सबसे लंबी दुआ की। कितनी लंबी दुआ की? तकरीबन 6 घंटे लंबी दुआ की। 6 घंटे तक हाथ उठाए रखे अपनी उम्मत के लिए। और इसी पहाड़ के नीचे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कसवा नामी ऊँटनी पर बैठकर हज का आखिरी खुतबा दिया, जिसे हम खुतबा हज, जिसे हम खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं। उस खुतबे में क्या फरमाया, जब वापस आएंगे सुनाऊंगा। इसी पहाड़ के ऊपर एक सफेद रंग का और एक काले रंग का पिलर पड़ा हुआ है, जो सिर्फ इस बात की निशानदेही करता है कि जबल रहमत पहाड़ है। उसमें नार की कोई हकीकत, कोई फजीलत नहीं है। गवर्नमेंट ने सिर्फ इसे ज़ियारत करें। देखें, एक बात मैं करना नहीं चाहता, मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी बन जाती है। मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा, सभी ने उसी रास्ते से जाना है और उसी रास्ते से वापस आना है। मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा, मैदान अराफात के 600 से ज्यादा रास्ते। और देखिए फैजान भाई माशाल्लाह आपके साथ हैं, आप इनके साथ ही जाएं और इनके साथ ही वापस आएं। अगर कोई बंदा इनके पीछे पीछे तो आगे आगे कहाँ जा रहे हैं सब? इनको फॉलो करो, ये कहाँ जाती है इनके पीछे चलो। यहाँ यहाँ मस्जिद यहाँ पर है। तुम कौन? मौलाना पीछे है। यहाँ जल्दी ना आते, लेडीज सब यहाँ जल्दी आ सकते हैं। लेडीज से गाड़ी था जी भाईजान, ये कौन सा पहाड़ है? जबल रहमत। माशाल्लाह हम लोग जा रहे हैं अभी। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की दुआ कबूल हुई। जी जी, 40 साल इस पहाड़ के इर्द गिर्द घूमते रहे थे 40 साल तक। जी। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी पहाड़ के नीचे खड़े होकर दुआ की थी अपनी उम्मत के लिए, और सबसे लंबी दुआ की, सबसे लंबी 6 घंटे की। माशाल्लाह। और आमीन कहने से पहले कबूल भी होगी थी, पूरी भी होगी थी। आमीन और इंशाल्लाह आप भी जो अपनी आस उम्मीद लेके आए हैं, अल्लाह पाक आपकी भी कबूल करे। आमीन। और इंशाल्लाह आपको बार बार इस जगह की ज़ियारत करवाए। आमीन अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। आप भी इंशाल्लाह ऊपर ये जो ऊपर मीनार बना हुआ है ना पहाड़ के ऊपर, ये एक निशानी तौर पे बनाया हुआ है उन्होंने, ठीक है, कि पहाड़ कहीं गुम ना हो जाए इन पहाड़ों पर। बाकी सब अपना अपना जिस तरह भी वो अपना अकीदा लेके आते हैं वो उन पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है हमें वही करना चाहिए। उनके पीछे ही हमें जो उन्होंने
कर चुके हैं और कर गए हैं, वही हमें भी करना चाहिए। सबके सीधे हाथ पे सामने की तरफ आने लगी है मुज़दलिफ़ा। ये कितनी मुक़द्दस जगह है, आप अंदाज़ा करें कि इस मस्जिद का कुरान पाक के दूसरे सिपारे के अंदर जिक्र आया है सूरत अल बकरा के अंदर। मस्जिद अल मशरुल हराम बामुतल ऐसाबान मिना में खेमे हैं, अराफात में खेमे हैं, लेकिन मुज़दलिफ़ा ऐसा मैदान है। ये भी उसी दिन में खुलता क्या? पूरा साल में एक रात के लिए मस्जिद खुलता है। वो रात कौन सी है? वो 9 ज़िलहज की रात है। 9 ज़िलहज की सुबह हम लोग पीछे होते हैं अराफात में। 9 ज़िलहज की रात हम लोग इस मैदान में गुजारते हैं। हाजी साहबान, इस मैदान को जरा सीधे हाथ में गौर से देखें। आपको से मना है मट्टी पर बैठ और इस मट्टी के अंदर ही जाना है। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, हाजियों से बैठा नहीं जाता, लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, ऐ मेरे बंदे सारी रात खुले आसमान तले बगैर किसी छत के, बगैर किसी खेमे के, बगैर किसी सहारे के नीचे जमीन पर बैठ और मुझे याद कर। आप सभी लोग अपने दाएं और बाएं हाथ नीचे जमीन पर देखें, आप बड़े नजर आ रहे हैं। ये जो पत्थर है छोटे छोटे हैं, ये 10 ज़ुल्हज सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपका सबका मेरा दुश्मन शैतान, जिसकी वजह से आपको नींद आ रही है, जब रात को कंकर मारने के लिए सभी हाजी साहबान यहाँ से मिना की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही रवाना होते हैं, सबसे पहले शैतान को कंकर मारते हैं, फिर हलक करवाते हैं यानी टेंट करवाते हैं, फिर कुर्बानी देते हैं और कुर्बानी देने के बाद बैतुल्लाह शरीफ वापस चले जाते हैं, तवाफ करते हैं। तवाफ करने के बाद यहाँ पर मीना में वापस आ जाते हैं। आयसाबान, जैसे हम लोग मुज़दलिफ़ा से निकले, बिल्कुल साथ ही वादी मीना है, जिस वादी के अंदर 3 दिन क़याम किया जाता है, 10 की रात, 11 और 12 ज़ुल्हज को। आयसाबान, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी वादी है, एक छोटी सी ज़ियारत है, जिसने आपको एक सबक देना है। इस वादी का नाम है वादी मुहस्सर। इस वादी के अंदर यमन का बादशाह अबराहा अपना 100 हाथियों का लश्कर लेके आया, नौज़ बिल्लाह, अल्लाह के घर को गिराने के लिए, बैतुल्लाह शरीफ को गिराने के लिए। और उसने क्या किया? हमारे पर नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बकरियों को कैद कर लिया और कहा कि मैं यमन का बादशाह हूँ और अल्लाह के घर को गिराने के लिए आया हूँ। अल्लाह के नबी के दादा ने फरमाया, ऐ अबराहा रुक जा, जिसका घर है वो खुद ही उसकी हिफाजत कर ले। फिर अल्लाह ने अपने घर की किस तरह हिफाजत की? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहुम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फ़जअलहुम कसफ़ा। अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर फरमाया कि हमने हाथी वाले लश्कर को ऐसे बना दिया जैसे जानवरों का चारा होता है, जैसे जानवरों का भूसा होता है। अल्लाह ने क्या किया? एक छोटा सा परिंदा अबाबील लिया, अबाबील की चोंच में और उसके पंजों में छोटे छोटे से पत्थर दिए। वो जो 100 हाथियों का बड़ा लश्कर आ रहा था, अल्लाह ने उसे एक छोटे से परिंदे अबाबील से तबाह करवा दिया। हमें इस ज़ियारत से क्या सीखने को मिला? कि जो बंदा गरूर और तकब्बुर करता है, अल्लाह उसे तबाह करवा देता। अबाबील छोटा सा एक परिंदा है, हाथी कितना बड़ा होता है। ऐसाबान, उस जगह से हम लोग गुजरने लगे हैं। जैसे हम लोग वहां से गुजरेंगे, सभी लोग मिलकर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह का वहां पर अजाब आया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब इस इलाके से गुजरो तेजी से गुजर जाओ, यहाँ पर रुकना नहीं है। हमारी जो अभी ज़ियारत है उसका नाम है मुकाम इस्माइल। आज की सबसे खूबसूरत ज़ियारत, जो सबसे ज्यादा सबक देने वाली ज़ियारत है, उसका नाम है मुकाम इस्माइल, कुर्बानी वाला पहाड़। वो पहाड़ जहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए लेके आए। अल्लाह पाक ने 80 साल की उम्र के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बेटा था कि उसका नाम क्या रखा? पहले जरा अपने उल्टे हाथ में नजर रखें। काले रंग का एक दरवाजा है, उसके बाहर 2 खजूर के दरख्त लगे हुए हैं। ये वादी मुहस्सर की निशानी है कि उनके अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पर अल्लाह ने एक बहुत बड़े लश्कर को तबाह बर्बाद किया। वादी मुहस्सर, वादी मुहस्सर भी हम लोग इसे बोलते हैं।
ऐसा बात 80 साल की उम्र के बाद जब एक बेटा अदा किया, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और हुक्म आया कि इब्राहीम अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान कर दो, कुर्बान जाऊं उनकी इज्जत पर। उन्होंने अपने एक अकलौते बेटे को उठाया और इस पहाड़ पर ले आए। आज कोई लेके आता है इस तरह? किसी का दिल चाहता है? किसी का दिल नहीं चाहता। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बगैर कुछ सोचे समझे इस पहाड़ पर ले आए, जमीन पर लिटा लिया, अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। तो जब गर्दन पर छुरी चलाने लगे, अल्लाह पाक ने जन्नत से ठंडा गई और फरमाया कि इब्राहीम मैंने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल किया। ये आप लोगों ने उल्टे हाथ में नजर रखनी है। पहाड़ के दरमियान में एक छोटा सा मीनार आ रहा है, उसमें एक छोटा सा सुराख है। ये मुकाम इस्माइल की निशानी, जैसे जबल रहमत पहाड़ के ऊपर एक मीनार पड़ा हुआ था, बिल्कुल इसी तरह गवर्नमेंट ने ये जो मीनार है ये निशानी के तौर पर रखे हुए हैं ताकि ये पहाड़ के दूसरे पहाड़ों में खो ना जाए। मेरे हाथ की तरफ देखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे, पहाड़ के दरमियान में एक छोटा सा मीनार है, उसमें एक छोटा सा सुराख नजर आ रहा है। हाथ की तरफ देखें, पहले मेरे हाथ की तरफ देखें और वो सामने देखें। आज आप लोग सुन लें कि हम लोग हज पे कुर्बानी क्यों देते। आज सुन लें कि हम लोग शैतान को कंकर क्यों मारते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने लगे। शैतान कहता है इब्राहीम क्या कर रहे हो, 80 साल की उम्र हो गई है, बुढ़ापे का सहारा है, एक ही बेटा है, उसको भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जमीन से एक पत्थर को उठाया, शैतान को मारा। शैतान ने 3 दफा उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रोका। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 दफा उसको पत्थर मारा। मेरे अल्लाह को ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उसे हज का रुकन बनाया। जो हज में शैतान को कंकर नहीं मारेगा उसका हज कबूल नहीं होगा। जो बंदा कुर्बानी नहीं करेगा उसका हज कबूल नहीं होगा। ये आप सबके दाएं और बाएं हाथ पर ये सारा इलाका वादी मिना का इलाका है, वादी मिना के खेमे हैं। इस मैदान के अंदर भी एक मस्जिद है, तीनों मैदानों के अंदर एक एक मस्जिद है। ये मस्जिद आप सबके उल्टे हाथ पर आने लगी है, मस्जिद अल खैफ इसका नाम है। पूरा साल ये मुकामात बंद रहते हैं, उजाड़ पड़ी हुई, देखें कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उल्टे हाथ पे एक मस्जिद है जहाँ पर अल्लाह के नबी ने इमामत करा और उनके पीछे 70 सहाबा कराम ने, अंबिया कराम ने नमाज पढ़ी आप सबके उल्टे हाथ पे। मस्जिद अल खैफ इसका नाम है। पूरे साल में 6-7 दिन के लिए सिर्फ खोली जाती है। जमराज शैतान देखें सभी लोग उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ पे देखें सभी लोग। आप देखें कि आपको एक ब्रिज नजर आ रहा है, एक पुल नजर आ रहा है, उसके साथ एक गोल पिलर है, एक बिल्डिंग है जिसके 3 फ्लोर, उसमें अंधेरे, उसके ऊपर एक सफेद कलर की बड़ी छतरी पड़ी हुई नजर आ रही सभी को। आपने नीचे नहीं देखना है कैसे खेमों को, आपने ऊपर देखना है कि एक बिल्डिंग के ऊपर एक सफेद कलर की बड़ी छतरी पड़ी हुई है, नजर आ गई सभी को। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। उल्टे हाथ पे देख लिया सभी ने। ये सबसे छोटा शैतान, अगर आप इसको गौर से देख रहे हैं तो इसके पीछे भी आपको एक छतरी नजर आ रही है। ये 3 शैतान एक ही लाइन के अंदर है। यहाँ पर 10, 11 और 12 ज़ुल्हज को 3 दिन कंकर मारे जाते हैं। आप अपने सीधे हाथ पर देखेंगे, ऐसा बहुत बड़ा ही खूबसूरत नजारा है। ये वादी मिना के खेमे हैं, वादी मिना के टेंट है, कैंप है। इन खेमों के नीचे 3 दिन क्याम किया जाता है। 10, 11 और 12 ज़ुल्हज को अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इन खेमों के नीचे बैठने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अर्शबान यहाँ पर आके हाजियों का हज मुकम्मल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।
لیکن قبول اس اللہ کی ذات ہے. جو بندہ دیکھے 70-80 لاکھ لگا لے ایک فیملی نے, کسی کو نہیں خبر ہوتی ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں. جب بھی حرم میں جائے ایک چھوٹی سی دعا لازمی کیا, اللہ ہماری عبادات کو قبول کر. اب ہماری گاڑی جو ہے یہ مسجد جہرانہ کی طرف جا رہی ہے, جہاں سے حاجیوں نے احرام باندھ کر, آپ نے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کرنی ہے. ایسا آپ لوگ مسجد جرانا چاہتے ہیں, احرام نہیں باندھتے, کوئی مسئلہ نہیں, پہلے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں, واقعی میں نہ دیکھ لیں سیدھے. مسجد جورانہ عائشہ بان اسلام کی سب سے بڑی جنگ جنگ حنین ہوئی. اس جنگ میں اللہ کے نبی نے تقریباً 10,000 صحابہ کے ساتھ حصہ لیا. اس جنگ کے اندر اللہ کے نبی نے 3 بڑے قبیلوں کو فتح کیا. بدو سعد کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ اس قبیلے میں اللہ کے نبی کا بچپن گزرا. اللہ کے نبی کے ابتدائی 4.5 سال بچپن کے بدو سعد قبیلہ میں گزرا. تائی حلیمہ کا قبیلہ, جس قبیلے کے اندر اللہ کے نبی بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے. 23 تاریخ کو طائف اور بنو سعد جائیں گے, ٹھیک ہے, سب نے اکٹھے جانا ہے. 23 تاریخ کو جو اپنے دوسرے پلان وہ اس کو کینسل کر دیں. طائف ایک ایسا شہر ہے جہاں پر اللہ کے نبی اسلام کی دعوت لے کے گئے تھے. پھر آگے وہ قبیلہ میں آپ کو اسپیشل لے کے جا رہے ہیں. یقین مانے بس جاتی 3,000 ریال کا جرمانہ ہے, لیکن رسک پہ لے کے جاتے ہیں. بہت کم, آپ انشاءاللہ جائیں گے, آپ کو 1 یا 2 بس نظر آئے گی, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, چھوٹی گاڑیاں نظر آئیں گی. انشاءاللہ طائف پلس بنو سعد 23 تاریخ کو گاڑی جا رہی ہے. آپ سبھی نے اسی طرح جانا ہے. دیکھیں کتنا اچھا ماحول بنا. 2-3 ریال کی خاطر نہیں, 2-3 ریال کو نہیں دیکھنا کسی نے, آپ نے اکٹھے جانا ہے, ٹھیک ہے. حاجی صاحبان, اس جنگ کے اندر اللہ کے نبی نے 3 بڑے قبیلوں کو فتح کیا, بنو سعد, بنو حواوس اور بنو تثیف. یہ جب ہم مسجد جرانہ پہنچے گے, اس کے ساتھ ایک چھوٹی سڑک جاتی ہے آگے, یہ طائف اور مسجد جرانہ کے درمیان یہ قبیلے آتے ہیں. اللہ کے نبی نے جنگ کے اندر 4,000 قیدی, 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں مالے کی نسبت فتح کی. یہ جو سارا مال اکٹھا کیا. جرانہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا, ایک چھوٹا سا قصبہ تھا. اللہ کے نبی یہاں پر رکے, صحابہ کے درمیان مالے کی نسبت کو تقسیم کیا اور حکم دیا کہ صحابہ آپ لوگ یہاں سے احرام باندھے عمرے کی نیت کریں. تو یہاں سے اللہ کے نبی نے تقریباً 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت کی. جس جگہ پر آج ہم لوگ جا رہے ہیں اس کا نام کیا, مسجد جہرانہ. اس کے علاوہ آپ لوگ مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں. ایسے بعد جب انشاءاللہ طائف جائیں گے, طائف سے واپسی میں میقات آئے گا, کرنل منازل میقات, جہاں سے اللہ کے نبی نے احرام باندھا. مدینہ سے واپسی آئیں گے, میقات آئے گا ذوالحلیفہ. جہاز میں بیٹھے رہے, جدہ پہنچنے لگے, اعلان ہوا کہ ہم لوگ میقات کے دور سے گزر رہے. اس میقات کا نام ہے یلملم یا جوفا. 2 میقات یہ ہیں, ایک میقات عراق کی طرف سے آتا ہے. ایسے بعد 5 میقات ہیں جہاں سے احرام باندھنا لازمی ہے. شاید کیوں فضان بھائی, جہاں عمرے کی نیت کرنا لازمی ہے, کوئی بہانہ نہیں چلے گا. لیکن اگر آپ لوگ مسجد عائشہ اور مسجد جرانا چاہتے ہیں, کسی کا دل نہیں چاہتا احرام باندھنے کا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ میقات نہیں, یہ حل ہے. یہاں سے حکم دیا گیا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے احرام باندھیں عمرے کے لیے. اگر کوئی باندھنا چاہتا ہے باندھ لے, بسم اللہ. کسی نے نہیں باندھنا, کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ ہم لوگ مسجد جرانا پہنچ رہے ہیں. جیسے آپ لوگ اترے پہلے وضو کریں, پھر احرام باندھیں, 2 نفل. اچھا, نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے عمرے کی نیت, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ہم لوگ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش لوگ ایسے کرتے ہیں. زیادہ تر ملکوں کے جو حاجی ہیں وہ صرف مسجد جرانہ کے قریب سے گزرتے ہیں, پوری عمرے کی نیت کی دعا پڑھ لیتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. لیکن آپ لوگ یہاں پر اترے, احرام باندھیں. انشاءاللہ ہماری گاڑی 10 سے 15 منٹ میں پہنچ رہی ہے مسجد جرانہ. سب لوگ ایک ساتھ جائیں اور ایک ساتھ آنے کی کوشش کریں, آگے پیچھے نہ ہو. جائیں گے آواز نہیں آ رہی ہے. کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ماں, پیاری حلیمہ صادقہ کے گاؤں کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ
अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़ियारतों हमारी इबादतों को कबूल फरमाए आमीन और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह यहाँ पे आगे जंगे हुनैन हाजी 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 ठीक है हाँ मैं छावा रहा हूँ आप लोग ग्रुप में रहो ठीक है हाँ आगे सब लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियाना हदियाना मुहम्मद अस्सलामु अलैकुम दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियाना हदियाना मुहम्मद अस्सलामु दुरूद पाक पढ़िए अल्लाह सुभान अल्लाह बनाया गया है ठीक है ये अभी बंद है ये कुआं ठीक है इसके अंदर कुआं ये जो दीवार नजर आ रही है ना इस दीवार के अंदर कुआं पाक है जिसमें नबी पाक ने डंडा गाड़ा और पानी का चश्मा फव्वारा निकल गया और साहबे 10,000 साहबे करम पानी पिए अपने मस्की से भरे अहराम बांधे फिर आय हाय 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 हरम की तरह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक क्या समा होगा क्या समा होगा मेरे आका के साथ साहबे एक साथ पढ़ रहे होंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक या शरीका लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक लब्बैक या शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक या शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक यहाँ की हाजिरी हमारी कबूल फरमाए माशाल्लाह हम लोग जैसे आप देख सकते हैं सुबह निकल के हम लोग ज़बल रहमत जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे 6 घंटे दुआ किए थे मग़फ़िरत के लिए हम सारे उम्मती के लिए और हम लोग पहुँच चुके हैं ज़बल रहमत। माशाल्लाह देखिए ये जो पीछे जो पहाड़ है ये मीनार है इसके ऊपर ये है ज़बल रहमत है। वालेकुम अस्सलाम। और सब खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ऊपर वाला आपका उम्र कबूल और मकबूल फरमाए। आमीन। के लिए दुआ सबके करना लिए दुआ करते हैं हम लोग इंशाल्लाह। आने वाले जो ना आ जो पाए ना जो भी आप रहेंगे लोगों सबके लिए दुआ सबके करो। लिए दुआ करते हैं। जी जी या अल्लाह आप सबको भी हज की नसीबात फरमाए। आमीन आमीन। आप सब भी हज में आ सके जैसे करके हज कर सके उम्रा कर सके आप सबके लिए हम लोग दुआ करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे सबकी दुआ कबूल होती है इंशाल्लाह। हम लोग की भी दुआ कबूल होगी आपके लिए। इसको क्या करोगे ऊपर क्या ले जाओगे माशाल्लाह भीड़ यहाँ पर खजूर खाने के लिए चच्चा खजूर मारते हैं। खजूर खाने के लिए ज़्यादा भीड़ लगी नहीं। हाँ ये नोरिसा आदमी खाने पीने में कमी करती नहीं नारायण पूर खजूर खाती नहीं खाली बस में दो हाँ उनके लिए भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। हाँ उनके लिए हाँ हाँ मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद जोराना मस्जिद जोराना जिराना जोराना जोराना इराना भी कहते हैं जोराना भी कहते हैं शीम आइन जोराना मस्जिद जोराना यहाँ से हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्रा के लिए एहराम बांधा था। खूबसूरत यही तो पानी
जंग बदर, इस जंग में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो जख्मी सहाबा थे वो अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो जख्मी सहाबा कराम है जल्द अज जल्द इनका इलाज किया जाए, इनकी मलम पट्टी का इंतजाम किया जाए। बीमारियां फैल रही है, इस्लाम बचाने वाला कोई नहीं है। आज हमें इस जंग के अंदर शिकस्त होगी, इस्लाम को नौज बिल्ला नुकसान पहुंचेगा। अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ देखा, तवज्जो मेरी तरफ, ये इनाम आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ देखा, आसमान से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, फरमाया कि मेरे नबी से जाकर कह दो कि आप जिस दरख्त के नीचे बैठे हैं, इस दरख्त के टहनी को तोड़े, उसमें से एक रोगन निकलेगा, एक अर्क निकलेगा, जो आपने अपने सहाबा को पिलाना है, उनके जख्मों को लगाना है। सहाबा कराम अल्लाह के नबी जिस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, वो दरख्त सूखा हुआ था, अपना आसा मुबारक उस दरख्त पर रखा, उस इलाके के अंदर जितने भी दरख्त थे वो सारे दरख्त हरे भरे हो गए, सूखे दरख्त हरे हो गए। अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से वो रोगन निकाला, सहाबा कराम को पिलाया, सहाबा कराम के जख्मों में लगाया। उस ऑयल के अंदर, उस रोगन के अंदर इतनी ताकत थी, इतनी कुव्वत थी कि जैसे सहाबा कराम को पिलाया गया, उनके जख्मों में लगाया गया, सहाबा कराम इस काबिल हो गए कि वो दोबारा भी जंग लड़ सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले ही अल्लाह के नबी जंग बदर को फतह कर चुके थे। आयशा बान वो जो रोगन उस वक्त अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से निकाला, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसी तरह उसी मुकाम से जिसे सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट निकालती है और काले बद्दू निकालते हैं और आगे आप तक पहुंच जाते हैं, उस रोगन का नाम है रोगन बिलसान। शायद पहले किसी ने सुना हो, जो लोग पहले इधर आए हैं उन्हें इसके बारे में पता है, जो लोग इधर रहते हैं उन्हें इसके बारे में पता है। बड़ी अच्छी नायाब चीज है, कुदरती चीज है। आयशा बान रोगन बिलसान के एक कतरे के अंदर अल्लाह पाक ने 70 बीमारियों का इलाज रखा हुआ है। ये तो दवाई नहीं है, ये तो मेडिसिन नहीं है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, लंदन, कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया से लोग आते हैं, इसे लेके जाते हैं। डॉक्टर फैमिलीज आती है, इसे लेके जाती है। गूगल पे सर्च करें, बड़े लिखे लोग बैठे हैं, गूगल पे लिखें रोगन बिलसान, इसके फायदे आपके सामने आ जाएंगे। जितने मैं जानता हूं मैं आपको बताने लगा हूं। रोगन बिलसान पूरी दुनिया से हमसे लोग लेके जाते हैं, ज्यादातर लोग बेऔलादी के लिए लेके जाते हैं, जिनके पास औलाद नहीं। ये कोई दवाई नहीं है, ये अल्लाह के नबी के हाथ का मौजा है। बेऔलादी के लिए फालज, लकवा, शुगर, कैंसर, जोड़ों का दर्द, मोहरों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द, ये मेदा को तकलीफ देता है, ज़हनी कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी, पट्ठों की कमजोरी। हाय साहबान मैं कह रहा हूँ सुंदर कुमारी के अलावा लोगों से 20 ये पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इसे लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि अल्लाह के नबी के हाथ में सुनना समझ के लेके जाते हैं, इस नीयत से लेते हैं कि ये चीज़ अल्लाह के नबी ने इस्तेमाल की। हाजी साहबान ये सीधे हाथ पर देख लें, इस पहाड़ को जरा तवज्जो से देखें, जबल नूर गारे हिरा, इसको जरा तवज्जो से देखें सभी लोग। आयशाबान जबल नूर, इस पहाड़ को गौर से देखें। ये पहाड़ आपको एक ऊंट की तरह नजर आता है, देखें जरा, ऊंट की तरह नजर आ रहा है। वो पीछे रास्ता बना है, ये उसकी कोहान है और सामने उसकी गर्दन। जबल नूर, अल्लाह ताला में बैठकर अदल किया करते, इंसाफ किया करते, फैसले किया करते। कब्रिस्तान